we have more news coming in at this point in time. Delhi's Patiala House Court has rejected the anticipatory bail plea of Swami Chaitanya Anand Saraswati. It sought anticipatory bail in the case of alleged financial irregularities. This was not the case that he was looking at in connection with the matter of financial irregularities and not in connection with the case as far as sexual harassment and molestation charges are concerned. He is absconding. He continues to be absconding. Delhi's Patiala House Court, now, has rejected the anticipatory bail plea of Swami Chaitanya Anand Saraswati. He had sought an anticipatory bail in a case of alleged financial irregularities that he was facing. Remember, this is the same Baba who's now dealing with a dozen plus charges of molestation and sexual harassment. But this is another case in connection with financial irregularities. Clearly, a man with a dubious record now continues to be absconding. This information is coming from Delhi's Patiala House Court. A case which has got to do with financial irregularities. The court has now rejected the Baba's anticipatory bail plea. The Baba, remember, has been accused of molesting 17 girls in the ashram, and the allegations have been surfacing. And not just now, certain allegations had surfaced in the past as well, once in 2016 and the other time in the year 2009 as well. Delhi's molester Baba's bail plea in connection with financial irregularities matter has been rejected. Anisha Mathur has more. Anisha, tell us about this particular case that the Baba in question is dealing with, is facing, and his anticipatory bail plea, I understand, stands rejected today. Well, yes, Sneha, the bail petition, the anticipatory bail petition filed by the molester Baba has been rejected by the Patiala House Court. Now, remember, this case has been filed by, in fact, the administrators of the Sringeri Peeth themselves, saying that this Baba and some other persons colluded and created a separate trust where they diverted the funds meant for the Sringeri Peeth and the institution. Remember, this man has been was initially made the administrator for the trust that had been set up by the Sringeri Peeth to create a educational institution for. All right, Anisha Mathur getting us up to speed with those details as far as the matter concerning financial irregularities is concerned. Now, going back to this case of sexual harassment and molestation. A witness who was a former student of Chaitanya Anand has revealed his depravity. In an exclusive interview, he has told India Today how girls were lured and sexually abused. Let's take a listen. जो ये स्वामी पर आरोप लग रहे हैं कि वो छात्रों के साथ छेड़छाड़ करता था, उनको लालच देता था, आप उस इंस्टीट्यूट में रहे, आप स्वामी के बारे में क्या जानते हैं? स्वामी के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ उनका नाम ही पता है, स्वामी पार्थसारथी। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके फैमिली मेंबर क्या है, उनका आधार कार्ड पे क्या नंबर है, नाम है, वो मुझे नहीं पता है। ये इंस्टीट्यूट में ये पहली बार नहीं हुआ है जो ये इस बार ये चीजें जो निकल के आ रही है। इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है और इस तरह की गतिविधियां पहले पाई गई हैं। बट हालांकि एक पावरफुल होने के नाते इन्होंने उन केसेस को पैसे के रुतबे पे उनको दबाया गया है। बट ये मैं उन 17 छात्राओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस कॉल को इस मुद्दे को इतने ऊपर तो जिसकी वजह से ये चीजें हाईलाइट हो पा रही हैं। हालांकि इससे पहले भी चीजें हुई हैं बट इसका कोई भी किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं था। बट इन 17 छात्राओं की वजह से स्वामी के ऊपर ये चीजें उठाई गई है, ये मुद्दा बना है। नहीं, क्या फीमेल के साथ क्या होता था? आप अगर प्रक्रिया पूरे एडमिशन की, क्या फीमेल के साथ कुछ फीमेल ने आपको? अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो शुरुआत में बच्चों को जो है नॉर्मली जब एडमिशन के लिए आते थे उनको अच्छी लुभावनी चीजें बताई जाती थी कि आपकी कॉलेज की फीस कम है, आपको फॉरेन इंटर्नशिप दी जाएंगी, उसके बाद आपका टिकट होगा, आपको कोई भी अलग से कोई पैसे नहीं देने होंगे। इस तरह की चीजों को स्टूडेंट को बताया जाता था। उसके बाद जब बच्चे आ जाते थे एडमिशन लेके, एडमिशन के दौरान में ही उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करा लिए जाते थे, उनके 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। सो एक स्टूडेंट के पास
हाथ बंध जाने का सबसे बड़ा रीजन वो भी था। More news coming in as far as the charges against the Baba here is concerned, against the Godwin is concerned. Another stunning charge against Delhi's molester Baba Sringeri Peeth, and police informed the court that after filing FIR for misappropriation of funds, Chaitanya Anand withdrew 50 to 55 lakh rupees from the bank, got forged passport in a different name, absconded with the trust money. So this is another charge, a serious one, that has been leveled against the Baba here, against the Godwin here in question. Here are the details that we have with us. It's a stunning charge that has been made. Arvind Oja has been relentlessly tracking that big story for us. Shreya Chatterjee, my colleague, also getting in more on that story. Extremely intriguing case of the Baba Arvind, who had gone, or rather was not under the scanner. ऐसा हो कैसे सकता है कि इतने समय से इस गवर्नमेंट ने इस तरह के एक्ट्स में इंडल्ज किए, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट, और उसके बाद में ये भी एक केस है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी थे इस पूरे मामले में। चार्जेस लेवल्ड होने के बाद वो पैसा लेकर भी भागे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जब से ये एफआईआर रजिस्टर्ड किया है, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा शख्स जो इंडिया टुडे पर आया है, जो इसी इंस्टीट्यूट का फॉर्मर स्टूडेंट है, जिसने सिलसिलेवार तरीके से पूरा खुलासा किया, और जो फीमेल स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है उस पर कहीं ना कहीं वो मुहर भी लगा रहा है। इंडिया टुडे से उसने बातचीत में कहा कि जो विक्टिम गर्ल्स हैं वो कई सालों से कंप्लेंट लॉन्च कर रही हैं। तो सीधा सीधा दिल्ली पुलिस पर सवाल है, जो लोकल पुलिस है उस पर सवाल है। और जो स्टूडेंट है जिसने इंडिया टुडे से बातचीत की है, उसका कहना है कि जो स्वामी चैतन्यानंद है वो काफी रसूखदार है। वो लगातार लोगों को ये बोलता था कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, उसकी एम्बेसी में जान पहचान है, और इस वजह से पुलिस एक्शन नहीं लेती थी। 2016 में जिस फीमेल स्टूडेंट ने कंप्लेंट फाइल किया था, वो इस स्टूडेंट का, जिसका इंडिया टुडे ने इंटरव्यू किया, उसकी जूनियर थी। उसने भी पूरा खुलासा किया था कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाता था। इंस्टीट्यूट की जो फीमेल स्टाफ है वो भी स्वामी चैतन्यानंद के साथ मिली हुई थी। तो एक तरफ उनको, जो लड़कियां थी, उनको विदेश भेजने का, आईफोन देने का और तमाम चीजों का लालच दिया जाता था। दूसरी तरफ थ्रेट भी किया जाता था कि आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, आपको फेल किया जा सकता है। तो इस तरीके से लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करने को मजबूर हो जाती थी, और देर रात में अश्लील मैसेज भी भेजता था। यहाँ तक कि ये जो फॉर्मर स्टूडेंट है, इसने ये भी कहा है कि पूरे इंस्टीट्यूट में, गर्ल्स हॉस्टल में जो सीसीटीवी लगे हैं, उसको खुद मॉनिटर स्वामी चैतन्यानंद करता था। तो कई सालों से ये कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को और लोकल पुलिस को दी जा रही थी, कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार एक साथ 15 से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट ने कंप्लेंट दिया है, तब जाकर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। हालांकि अभी भी जो स्वामी चैतन्यानंद है उसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है। इस वजह से दिल्ली पुलिस पर और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल खड़े होते हैं। अरविंद ओझा गेटिंग इन दोस डिटेल्स।